I'm 19 years old and I'm also figuring out but how to handle the parents expectation. अभी ऐसा मेरे को एक कमेंट आया है मेरे आज के एक Instagram रील पे. अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ I'll let you know, but before that I just want to let you know that I am launching my first ever book soon and the details are right over here. You can read 22 practical lessons out of that entire book. This is just 10% of the book which I'm gonna launch. So please, you can download that for free. digitalpratik.com/book. अब चलते हैं ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ. That comment came on a 1-minute Instagram reel today and I'm gonna play that 1-minute reel right now in front of you so that you can contextualize कि ये वीडियो क्यों बन रहा है and what is there on my whiteboard over here in this video. So let's play that video right over here. How old are you? 19. Tension free है my एकदम simple answer is whatever you can just start doing that. When I was just a call center guy, so I thought that should I do Amway? I'm like, okay, fine, let me try that. Can I do Herbalife? I'm like, okay, fine, let me try out. I'm like, okay, fine, can I do digital marketing as a side hustle? Let me try out. Amway didn't work, Herbalife didn't work, digital marketing did work. And this is where this guy, Rahul, says, I'm also 19 years and I'm also figuring out but how to handle parents' expectations. So let me just bring myself up over here. My point is, I myself have gone through this entire phase of dealing with parents' expectation, especially when you're coming from a lower middle class family. I started my journey. I've worked for 12 years. I have been working for past 12 years now. And I started as a college dropout. Especially when you come from a Gujarati Kathiawadi family, I know that all these challenges do come in your life, all these phases you'll have to face, and this is where I'm talking about Indian culture over here. So let's discuss what are some common norms which are there in Indian culture, and I'm not saying all families might have, but majority of Indian cultural families do have these thought processes. And when it comes to parents think that they own their children. Parents think that they have sacrificed their own life, maybe 10 to 30 years for their kids, and now it's time for kids to do that same thing for their parents. Parents think that they want their kids to achieve what they didn't. मतलब अगर आपके पापा ने कुछ करना चाहा था लेकिन उनके पापा की वजह से वो नहीं कर पाए, उनको sacrifice करना पड़ा, and because of which they now think that you should fulfill that particular dream. And now all of these in Indian culture, I'm not against parents' thought process. I love my parents so much. I love my, friends' parents so much. I love our Indian culture. The only problem is, यहाँ पर होता क्या है कि they love you so much, but because of that fear, मतलब अपना बच्चा गलत राह में ना चला जाए, अपना बच्चा अगर ये करेगा तो शायद सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगा, अपना बच्चा ये करेगा लेकिन किसी ने तो नहीं किया तो ये अगर फेल हो गया तो क्या होगा? Because of all those things, and because they love you, they become fearful. They become fearful for your own actions, and because of which they try to control you invisibly. कभी कभी तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल करना शुरू करती है. Why? Why? Because they try to share their own experiences. काफी टाइम आपने सुना होगा कि इंडियन कल्चर में पेरेंट्स हमेशा ये बोलते हैं कि यार हमने लाइफ जी है, हमने भी लाइफ देखी है, तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये यू रिमेंबर दैट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो भीड़े का वो एक कॉमेडी डायलॉग भी है भीड़ो भाई का कि हमारे जमाने में. And that has been in Indian culture on a very very serious note, because all they try to do is they try to share their experience ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़े. वो केयर कर रहे हैं, लेकिन उसी चक्कर में while they are guiding them by sharing their experiences, they force them. Alright? They are invisibly forcing them. Just like over here, because they love you and they are becoming fearful for your actions, they tend to control you invisibly. Similarly over here, वो कभी कभी एक्सपीरियंस को शेयर करने के चक्कर में वो प्रेशर बन जाता है, फोर्स बन जाता है. Now, what I personally feel is the next generation, मतलब हम लोग बच्चे लोग जो होते हैं, and when I say बच्चे लोग, like it's always the next generation. I'm 33 years old right now. I have a 12 years of working experience. I am, taking care of my parents. My parents are, retired. My dad got a paralytic stroke when I took a college job. So all these things, since past 12 years, I'm taking care of my family. I will forever keep my parents with me. I'm not shifting from my city, Ahmedabad, to any other city just because
आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पेरेंट्स. सो when I say that Indian culture में ऐसा है, parents का ऐसा है, that doesn't mean that I'm against. Again and again, I'm repeating this, that please make sure that this is all about loving your Indian culture, but at the same point in time, be practical about it. मेरा एक ही फंडा है, हमेशा इमोशनल बनो लेकिन प्रैक्टिकल भी बनो. प्रैक्टिकल पहले बनो कुछ चीजों में जहां पर आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज अगर आगे बढ़ने के टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बनोगे तो आप अटक जाओगे या तो आप बर्बाद हो जाओगे. ट्रस्ट मी, दीज आर हार्श वर्ड्स, बट आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज लाइक दैट, एंड आफ्टर ऑल दीज 12 years of thing, I know that it's always better to be emotional plus practical. And काफी टाइम 80% तक प्रैक्टिकल बनना पड़ता है और 20% ही इमोशनल बनना पड़ता है. So what I believe is the next generation should find gaps from previous generations and innovate by being bold. Example देता हूं. जब मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया and being a bright student, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया तो काफी सारे लोग जो मेरे फैमिली में थे उन्होंने बोला कि भाई क्या कर दिया. And that too when I say college drop, मैंने 3 बार ड्रॉप लिया है. फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम जब मैंने ड्रॉप लिया बिकॉज माई डैड गॉट अ पैरालिटिक स्ट्रोक, मैं एग्जाम नहीं दे पाया था, उसकी वजह से मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा था. और 2010 की बात कर रहा हूं, जब वो टाइम पे इफ यू डोंट अपीयर फॉर एन इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन यू कैन नॉट सिट फॉर द नेक्स्ट इवन सेमेस्टर. लेकिन आप एक ऑड सेमेस्टर क्लियर करके आए थे तो आप नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में बैठ सकते हो. तो वही चक्कर में जब इवेंट सेमेस्टर आता था तो मैं नहीं बैठ पाता था, और उसी चक्कर में मेरे को पैसा भी कमाना था. तो मैंने कॉल सेंटर की जॉब शुरू की थी, और ये 1-1.5 साल तक चला और मेरे फैमिली में पता ही नहीं था कि मैंने ड्रॉप ले लिया है. बट जब वो पास आउट 4 साल खत्म होने को आए थे, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड टू टेल, बिकॉज वो डिग्री मांगते, तो मैंने बता दिया कि अब मैं फाइनली कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को पैसा कमाना है, बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग द सब्जेक्ट्स. नंबर 1, even though I was a bright student, I scored 88% in physics, chemistry and maths, PCM, 88% in 12th science, but still something happened. तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ था, केमिकल इम्बैलेंस, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स पढ़ लिया, ये वो फलाना ढिमका. फास्ट फॉरवर्डिंग मैंने जब डिसीजन लिया, सो नंबर 1 थिंग मेरा तरीका ये था टू डील विद इंडियन पेरेंट्स मेंटालिटी और लेट अलोन द एंटायर सोसाइटी, बिकॉज मैं पूरे समाज के खिलाफ जा रहा था. उनके लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट होते, दैट अपना बच्चा जबकि एक ब्राइट स्टूडेंट है और कॉलेज ड्रॉप ले रहा है, अपने करियर को बिगाड़ रहा है, विच इज व्हाट दे थिंक, दे विल फील दैट या तो आप लड़की के चक्कर में पड़ गए हो या तो आप ड्रग के चक्कर में पड़ गए हो. जबकि मेरे केस में वो दोनों में से कुछ भी नहीं था. बट स्टिल आई हैड टू स्टैंड टॉल, आई हैड टू जस्ट फेस दैट, और आई हैड दोस बॉल्स ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, दैट मेरे माँ बाप को अभी दुख होने वाला है, मेरे समाज को दुख होने वाला है, सब लोग मेरे को घर से निकाल देने वाले, विच इज व्हाट हैपेंड. आई वाज होमलेस, मेरे को लोगों ने घर से निकाल दिया था. राइट, सो आई वाज लाइक ऑलमोस्ट होमलेस, and I had to walk in for a call center job interview by asking a friend. So the key over here is that you have to be practical and emotional. और फिर एक चीज मेरे को तब उस टाइम पे सरकार मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, उसमें एक डायलॉग था, दूर के फायदे के लिए नजदीकी नुकसान सही है. So what I felt was while I'm trying to I'm not obeying my parents. इंडियन कल्चर में तो यही बात हो गई ना कि हमने अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखा, हमने अपने पेरेंट्स का ओबे नहीं किया, वो जो बोल रहे हैं वो हम मान नहीं रहे हैं, हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं. सो नाउ व्हाट आई फेल्ट वाज कि ये नजदीकी नुकसान है दूर के फायदे के लिए. एंड आज द एंटायर फैमिली इज सो प्राउड ऑफ मी, ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ. स्टिल देयर आर थिंग्स, जैसे कि at the age of 33, what I deal with an Indian parent right now is, मेरी शादी नहीं हुई है, शादी कब करेगा? Even though I have my assets, even though I make good amount of money, even though I have a company, even though I have good amount of employees, still I don't own a home on my name. Still I don't own a car on my name. I'm still renting a place. तो ये सारी चीजें अब मेरी जिंदगी में है. घर क्यों नहीं ले रहा है, इतना अच्छा कमा रहा है, शादी क्यों नहीं कर रहा है, सेट हो गया है,
वी ऑलवेज विल फेस। शादी होने के बाद क्या होगा? बच्चा कर लो, अभी उम्र हो गई है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। So all these things will keep on coming. The point over here is आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से be emotional and then be practical as well. Because मैं कुछ भी अगर आपको बोलूंगा कि हाँ छोड़ दो कॉलेज, आपको ये करना है, माँ बाप का मत मानो, अभी मुझे मालूम नहीं है ना कि आपके माँ बाप का सिचुएशन क्या है, आपके पेरेंट्स का सिचुएशन क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। मेरे पेरेंट्स, जब मैंने ये डिसीजन लिया था, एंड सिंस पास्ट 12 years आई हैव बीन टेकिंग डिसीजंस, माय मॉम इज अ हाउस मेकर। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी जॉब नहीं की है। शी इज नॉट दैट वेल एजुकेटेड, बट आई एम सो लविंग हर, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, whatever she has done for our family. My dad, he used to do screen printing business, printing का उनका एक business था, and we come from a very lower middle class family, तो ऐसे कभी चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं जी है। So now when my dad got a paralytic stroke, पूरा ठप हो गया, सब कुछ खत्म। अगर आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स पढ़ा होगा तो उसमें जो 4 क्वाड्रेंट्स है उसमें से my dad used to fall into second quadrant, self employed ही रहे, राइट? तो जब उनको हेल्थ का इशू हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सबसे बड़ा बेटा मैं ही हूं, मेरे से छोटी बहन है एक है, राइट? शी इज मैरिड राइट नाउ। सो ये सारी चीजें जब एक इंडियन पेरेंट्स को डील करने की बात आती है ना आज के जनरेशन में, तो मेरा यही सवाल होता है कि भाई अपनी फैमिली में है क्या, कौन क्या कर रहा है, सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है। यू नो, इन टुडेज लेट्स सपोज मैं तो ये बोलूंगा कि आप जॉब कर लो, पेरेंट्स के खिलाफ जाके जॉब कर लो, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे किया है। बट क्या आपके लिए वो चलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। Why? Because maybe आपके पापा मम्मी अच्छा कमा रहे होंगे, मे बी आपके पापा मम्मी अच्छा नहीं कमा रहे हैं, एंड आपकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि जहां आप जॉब कर पाओ, राइट? मेरे को जॉब मिल गई, क्यों? क्योंकि मैं बोलने में अच्छा था। मेरे को कॉल सेंटर की जॉब लगी थी गाइस, कॉल सेंटर की जॉब। इट वॉज नॉट अ फैंसी जॉब, एंड वो टाइम पे कॉल सेंटर की जॉब यानी मेरे फ्रेंड्स को इंजीनियरिंग की जॉब मिल रही है। एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज रेप्यूटेड, मतलब इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं भाई, डॉक्टर बन रहा है कोई, फार्मेसी का कुछ कर रहा है, मेडिकल लाइन में है, यू नो। एंड आई एज अ ड्रॉप आउट, कॉल सेंटर की जॉब, कॉल सेंटर वाज गाली। सो ये सारी चीजें गाइस, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर एवरीथिंग ओवर हियर, इंडियन कल्चर में ये है, रहेगा, irrespective of that, when they are doing all these things, try to have communication with them. अब मैं जब बोल रहा हूं कि communication करो आपके पेरेंट्स के साथ, I don't know कि आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। हर एक के माँ बाप अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भी परवरिश एक अलग रीजन से या अलग तरीके से हुई है। So maybe what I am doing or I am communicating with my parents might not work with you when you do that same communication with your parents. मतलब मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके माँ बाप के सामने जब वो ऐसे ही बात करते कि घर लेना नहीं है, मुझे रेंट पे रहना है, तो उनके माँ बाप हाँ बोलते हैं कि हाँ तेरी मर्जी, अच्छा डिसीजन ले रहा है, फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन ले रहा है तेरी एज के हिसाब से। जबकि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ मेरे पापा मम्मी के साथ, तो नहीं, आई एम स्टिल डीलिंग विद माय इंडियन पेरेंट मेंटालिटी, राइट? सो communication, emotional, be practical, emotional, be practical, and always remember, while you are communicating, please never insult them. There is a very thin line of difference between ignoring somebody and insulting somebody. I always try to ignore people because ignoring is sweet, insulting is harsh. तो मैंने जब अपने पापा मम्मी का नहीं माना था, मैंने कॉलेज ड्रॉप ले ली, मैंने डील किया ये इंडियन पेरेंट्स मेंटालिटी के साथ, आई हैव ऑलवेज इग्नोर्ड देम फॉर शॉर्ट टर्म so that I can make them happier in the long term forever. Alright? जो मेरा करियर का एक सॉर्ट आउट हो गया अभी, and they are happy, they never tell me anything about that. It took time for sure because I was emotional and practical. अब वही चीज मैं इंडियन पेरेंट के हिसाब से मेरी शादी के लिए डील करूंगा, फिर बच्चों के लिए डील करूंगा, घर लेने में डील करूंगा, वो सब कुछ होने के बाद कुछ और आएगा, you know? So it will never end. So it's a humble request to all of you guys. If you are 19 years or younger or elder or facing any issues with respect to dealing with Indian parents mentality, एक चीज याद रखो, please be emotional and practical.
That's how you will just go forward and forward and forward. Anyways, let me know that आपको ये वीडियो कैसा लगा, because like I'm trying a new thing over here for this video for my YouTube channel and for this brand new series again, which is डिजिटल प्रतीक शो. मैं पहले बहुत करता था डिजिटल प्रतीक शो, बट अभी मैंने बंद कर दिया था. अब वापस मैं शुरू कर रहा हूँ. आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद दैट. डेली ऐसे बड़े बड़े वीडियोस तो नहीं होंगे, मे बी डेली शॉर्ट्स करेंगे हम लोग, बट ऐसे वीडियोस भी शायद 2 या 3, but depending upon my time schedule all and depending upon the questions as well, I might just do more and more. And with that being said, please like this video, please subscribe to this channel and share this video with somebody else who might need to hear that how to deal with Indian parents mentality for their 2023. This is your host and host Digital Pratik signing off. I love you all.